So we were discussing hydroxide ions और उसका थोड़ा सा मैंने idea दिया था. Although you don't need to remember the structure in detail, but it's kind of थोड़ा बहुत idea होना चाहिए. Sometimes you might get questions related to covalent bonding और थोड़ा बहुत वो structure के बारे में पूछ सकते हैं. So let's do a few more simple ones. एक carbonate ion, ठीक है, that's CO3 minus 2. अच्छा, what does a carbonate ion look like? उसका पहले dot and cross diagram just briefly discuss कर लेते हैं कि so you have a carbon atom. अच्छा, carbonate ion जो है ना, it's an organic compound. So this carbon has 4 electrons in its outer shell. तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. अच्छा, so carbon in total needs 4 electrons to complete its outer shell. What it does is कि 3 ऑक्सीजन है ना उसके साथ, so it takes in an oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं. अच्छा, so oxygen has 6 electrons in its outer shell. So this over here is your oxygen atom. इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है. So this over here is your oxygen atom. कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 चाहिए. So what happens is कि वो एक ऑक्सीजन से ना एक इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने साथ. It pulls it and it attracts it and bonds with it. तो अभी कार्बन को ना एक इलेक्ट्रॉन मिला. Remember, carbon needs 4 electrons to complete its outer shell. So let's bring in another oxygen atom. अच्छा, ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है, इसकी भी क्रॉसेस में ड्रॉ कर लेते हैं. So it also has a total of 6 electrons. तो कार्बन इसके साथ ना forms a double bond. It brings it in और उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को ना अपने साथ शेयर कर लेता है. And then there's another oxygen atom. अच्छा, this other oxygen atom, carbon, again it has 6 electrons. So carbon ends up pulling 1 electron and starts sharing exactly 1 electron with it. So in this way, carbon की ना electron sharing complete होगी. Carbon needed 4 electrons. एक electron उसने एक oxygen से pull किया, एक electron उसने, 2 electrons उसने एक oxygen से pull किए, and 1 electron pulled from another. So it's making 2 single bonds and 1 double bond. तो यहाँ तक तो clear है ना? Hiba, is this clear? Yeah. अच्छा, so carbon has completed its outer shell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, सारे count कर लो. This oxygen over here, मैं tick लगा रहा हूँ oxygen के ऊपर भी. This oxygen has completed its outer shell as well. It's 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 4 electrons हैं which are sharing, so that's a total of 8. Oxygen ने 2 electrons share करने थे. मसला सिर्फ आएगा ये जो end वाले oxygen है, ठीक है, जो left और right attached है. Their outer shells are not complete. If you count 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, so that's a total of 7 electrons. इसका मतलब है this oxygen over here still needs 1 electron. ठीक है, its outer shell is not complete. This oxygen over here also has the same issue कि उसने कार्बन के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया था. Oxygen is supposed to form 2 bonds. So this oxygen over here is also not complete. Its outer shell is not complete. क्योंकि एक दो इधर इलेक्ट्रॉन्स, 4 5 6 7 कितने हो गए? Sorry, 1 2 3 4 5 6 and 7. So it has 7 electrons. So this also needs 1 electron. So the bonding is right now not complete. So what this molecule does is कि अगर यहाँ पे ना 2 सोडियम्स कहीं फिर रहे हैं, तो सोडियम के आउटर शेल में there's let's say उसका मैं आउटर शेल ही ड्रॉ करूं, तो सोडियम के आउटर शेल में there's 1 electron. Inner shells full होते हैं. So sodium would end up losing its 1 electron. This oxygen would end up gaining that 1 electron. तो मतलब आधा काम ना, पहले वो covalent bonding कर रहा था, but by doing covalent bonding, its electronic configuration was still not complete. So what it ended up doing was, if there was a sodium somewhere hanging around, so it's going to pull its electron. Metal हमेशा electron lose कर जाता है. So metal जो होता है वो तो ion बन जाएगा. तो इसका outer shell चला गया है and it's going to form Na+1.
तो इसकी इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल आर नाउ कंप्लीट। ठीक है, आधा काम उसने कोवलेंट बॉन्डिंग से किया, एक इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन के साथ शेयर कर लिया, एंड वन it got from a metal and the metal ended up losing electrons, so it ended up forming a an ion, yani ab ek electron usne gain kiya, and this other oxygen would do the same. There would be another sodium and it's going to take an electron from that sodium and it's going to fill its outer shell. तो ये जो पूरी चीज है ना, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? -2। वाई -2? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन इधर गेन किया बाहर से, ठीक है, एक्स्ट्रा गेन किया, so it's -2. So this is what a carbonate ion looks like, and this is what is basically Na2CO3, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, कि उसके अंदर there are two sodium ions, positive ions attracted to a negative ion. ये क्लियर है सारों को? अमाद क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा रिमेंबर, ये बॉन्डिंग खुद से बेशक ना आए ड्रॉ करना, बस कॉन्सेप्ट समझ आ जाए पॉलीएटॉमिक आयन का। ठीक है, हिबा इज दिस क्लियर? मरियम क्लियर है? जी सर। अच्छा, so you have pretty much gotten an idea what a hydroxide ion or a carbonate ion is and how it's formed. जो important चीज है वो इनके नाम और इनके formulas याद रखना है। ठीक है, that's one of the most basic things that you need to do. So we're going to construct a table जिसके अंदर we're going to write the names of all the ions that you already studied in O levels. ठीक है, you're already familiar with them. तो उनके बस नाम, उनकी पूरी लिस्ट एक बना लें, क्योंकि फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कोई आपको कहे सल्फेट, तो आपको पता होना चाहिए SO4-2. So we're just going to do that. So let's start with carbonate, CO3-2. This is carbonate. I'm going to write down all the ions. Nitrate is NO3 -1. उसी तरह there's a nitrite ion. So that's ITE. फिर आपके पास you have phosphate, which is PO4, and the charge is -3. So this is phosphate. Then you have phosphite as well, which is PO3 -3. This over here is phosphite. Phosphite के बाद some other ones sulfate. Yes, sulfate नहीं क्या? It's SO4-2. Then there is sulfite, which is SO3-2. इनमें थोड़ा सा फर्क होता है. Remember, there's one oxygen atom more. 8 के अंदर ना ऑक्सीजन ज्यादा होता है, 8 के अंदर ना ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है. अच्छा, इस साइड पे, राइट साइड पे चले जाते हैं. और कौन सा मिक्स किए? हाइड्रोक्साइड ऑब्वियसली OH1- -1. अच्छा, हाइड्रोक्साइड, then you have ammonium, which is NH4 +1. सल्फेट सल्फाइड हो गया, नाइट्रेट नाइट्राइट, ठीक है, वो सारे हो गए. फिर some more dichromate 6. ये भी डेफिनेटली सुना होगा, Cr2O7 2-. This is the dichromate 6 ion. ये वो ऑक्साइजिंग एजेंट होता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता था. फिर मैग्नेट 7, which is MnO4 -1. That's magnate 7. Then you have cyanide ion. There is hydrogen carbonate, which is also sometimes referred as bicarbonate. Sir, dichromate is Cr2O7. Yes. एक क्रोमेट 6 भी होता है, वो होता है CrO4 होता है 2-. उसको छोड़ दो. अच्छा, ये मैं, अच्छा मेरे ख्याल से आपका वो क्वेश्चन था कि क्लियरली मैं लिख दूं. Cr2O7 2-, ठीक है.
अच्छा, hydrogen carbonate or it's also referred to as bicarbonate. जिसका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये बेकिंग सोडा एक्चुअली वही होता है। फिर हाइड्रोजन सल्फेट भी होता है, HSO4 -1। अच्छा, और कितने हो गए हमारे पास? 3 3 7 इस साइड पे, और दैट्स कोई और आयन जो पढ़ा हो, दैट्स जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, सोचने के, और तो कोई नहीं आएगा। NaClO3 ये कर लेते हैं, चलो ठीक है, बाकी छोड़ दो, दे नॉट वेरी कॉमन, वो हम अलग से भी पढ़ लेंगे। अच्छा, these are the ones that are very common and you should know, they should be on your fingertips, ठीक है? बस ठीक है, I think I'm satisfied with the list. ये क्लियर है, ये सारे पढ़े हुए हैं ना? अमाद क्लियर है, मरीम क्लियर है, इबा क्लियर है? जी जी सर। सर। अच्छा, तो ये you're already familiar with this, लेकिन दोबारा से रिवाइज कर लेना, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है? कोई आपको डाइक्रोमेट 6 के तो आपको सोचना ना पड़े, मतलब पूरा क्वेश्चन ही वही खत्म हो गया ना, कि उन्होंने कहा कि जी डाइक्रोमेट 6 रिएक्ट कर रहा है इस चीज के साथ, मोल्स का क्वेश्चन है, अब पता ही नहीं है डाइक्रोमेट 6 क्या है, सो उससे आगे क्या करोगे? या वो कहेंगे कि सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट कर रहा है, तो पता ही नहीं है कि नाइट्राइट क्या है, सो दे हैव टू बी, दीज आर द वेरी बेसिक्स थिंग, ठीक है? बेसिक्स नहीं है, टिप्स पे होने चाहिए। अच्छा, ये मैंने बोर्ड का लिंक शेयर किया था किसी से? अमाद, ये मैंने किया था? नहीं सर। नहीं। सर ग्रुप में किया था। चलो, ये मैं ग्रुप के ऊपर ना फिर एंड में कर दूंगा, ये ग्रुप, ये जो बोर्ड है ना, ये यही रहता है, इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, यू कैन ऑलवेज ओपन दिस लिंक अगेन, ठीक है? तो इसका बल्कि ना आई जस्ट सेंड अ क्विक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आई एम गोइंग टू सेंड अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल, ठीक है? ये मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ स्क्रीनशॉट। ये ग्रुप है, ठीक है, ये ताकि अलग से याद रहे। अच्छा, सो मूविंग ऑन, इन आयंस का करना क्या है? इन आयंस का हमने फॉर्मूला बनाना है और कुछ भी नहीं करना। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट? एल्यूमिनियम ग्रुप 3 प्लस 3 है। अच्छा, any positive ion, any negative ion, they're going to combine to form an ionic compound. कार्बोनेट क्या है? CO3-2। अब इस चीज पे ख्याल ये रखना है कि जो पॉलीएटॉमिक आयन है ना, इसका फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? What you can only do is you can change the quantity, मतलब अगर क्वांटिटी चेंज करनी है ना, तो ब्रैकेट डाल के 3 कर दो, 4 कर दो, ठीक है? You can't make it CO4, you can't make it CO6, ठीक है? You can't change CO3-2, ठीक है? तो if you do criss cross, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये 2 जो है ये उठ के इधर आ जाएगा, और ये 3 जो है ये उधर चला जाएगा। So it's basically going to be Al2, और CO3 कितने हो जाएंगे? थ्राइस। फॉर्मूले के अंदर ऑब्वियसली यू डोंट राइट चार्जेस, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कैंसिल आउट हो जाता है, एक नेगेटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है, तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होता है ना, दैट्स न्यूट्रल, इट डजंट हैव अ चार्ज। So this is aluminum carbonate. Let's do a few more. Okay, I have iron 3 nitrite. तो आयरन 3 नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होगा? कि Fe is plus 3, nitrite is NO2 minus 1. So the formula would be, if you do crisscross, 1 उठ के इधर आ जाएगा, Fe1 होगा, और NO2 कितने हो जाएंगे? 3 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, NO3, NO2 थ्राइस होंगे, ठीक है? So this is, एक सेकेंड मैं जरा चार्जिंग पे लगा लूं, just 1 second.
अच्छा चलें ठीक है, चार्जर लग गया। द नेक्स्ट थिंग इज कि लेट्स डू अ फ्यू, एक दो और इस क्लास में हमने यही करना है, मेनली फॉर्मूलाज। एक कर लेते हैं कि अमोनियम फॉस्फेट, तो अमोनियम इज NH4+1, फॉस्फेट जो है दैट्स PO4-3। तो क्रिस क्रॉस करो तो फॉर्मूला क्या होगा, अमोनियम 3 हो जाएंगे, तो इट्स गोइंग टू बी ये 3 उठ के इधर आ जाएगा, सो इट्स गोइंग टू बी NH4 थ्राइस, और PO4 कितने होंगे, वो एक ही होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अमाद, इज दिस क्लियर? हेबा क्लियर है? जी सर, आसान है। आसान, ठीक है। तो एक काम करो क्विकली, ये मुझे व्हाट्सएप पे भेज भी देना। मैं बस रैंडमली ना कोई 5-6 ये सामने आपके ना ये बना हुआ है, बल्कि अगर ये सामने रखना है तो मैं इस साइड पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये जल्दी से ना फॉर्मूलाज बना के मुझे भेज दो, प्योर टेबल सामने रख लो ताकि ग्रुप नंबर्स पता लग जाए। तो द फर्स्ट वन, सोडियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, कैल्शियम डाइक्रोमेट 6, एक और कर लेते हैं, चलिए ठीक है, ये सारे जल्दी से